So today we will see how to take the blood pressure. So there are the three methods to record the blood pressure. One is by oscillatory method, another is by palpatory method, and third one is by oscillatory method. So how you will write in the practical, first we will see that. So the aim of the practical is to record the blood pressure in the given person. So what you will write in the copy, the aim to record the blood pressure in given person. Okay, fine. Then aim के बाद requirement, what do you require? One stethoscope, one sphygmomanometer, and one volunteers जिसका आप लेना चाहते हैं. ठीक है. Then what is the principle? तो principle क्या है? सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ब्रेकियल आर्टरी को अक्लूड कर देंगे. ब्रेकियल आर्टरी को अक्लूड कैसे करेंगे? जब आप कफ बांधते हैं, कफ बांध के प्रेशर देते हैं तो ब्रेकियल आर्टरी अक्लूड हो जाती है. और उसके बाद either by the auscultation or by the palpation you will record the blood pressure. So this is the principle. By occluding the brachial artery you will record the blood pressure of the person either by the auscultatory method or by the palpatory method. So first point was the aim, second point was the requirement, and third point was the principle, right? Then fourth point was the sphygmomanometer instrument. That is the main practical that you will write in the book. The instrument is sphygmomanometer. The sphygmomanometer is of three types. One is of mercury like this. इसके अंदर मरकरी है. तो जिसके अंदर मरकरी का स्केल होता है, जिसमें मरकरी ऊपर नीचे चढ़ती है, that is the mercury sphygmomanometer. And this one is the aneroid manometer. Aneroid sphygmomanometer. Aneroid. And third one is the digital. So this is the mercury, this is the aneroid, and third one is the digital. So in the lab, what the student mostly use, this is the aneroid. This is the most cheapest and easily available. ठीक है. हॉस्पिटल में जाएंगे तो जनरली ये मिलता है देखने के लिए. फाइन. तो इस थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट को पढ़ लेते हैं. This is the instrument. This instrument is known as sphygmomanometer. This is designed by scientist Riva Rokai. This is designed by scientist Riva Rokai to record the blood pressure of the person. What it contains? It contains the cuff. This is the cuff that you have to tie on your arm. With the inflatory cuff, with this you will create the pressure, and because of the pressure, the air will go and the artery will occlude. So first, what it contains? This is the inflatory cuff. The second point, what is this? This is a monitor. This is the monitor. And third, these are the pipes. If you will see the mercury sphygmomanometer, then it contains the mercury monitor, and this scale there is a mercury. Likewise, when you will give the pressure, the mercury will go up. The mercury will go up. In here, what is that? Aneroid. In aneroid, we have the digital scale like as that of watch, right? So this is the sphygmomanometer. The sphygmomanometer is an instrument designed by scientist Riva Rokai. It consists of the three parts. One is the inflatory cuff, another is the monitor, and third one is the pipes, right? तो सबसे पहले ब्लड रिकॉर्ड कैसे करना है, ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड कैसे करना है. तो जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में ओपीडी में आता है तो आते ही पेशेंट का ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड नहीं करना है. वो सीढ़ी चढ़ के आएगा, वो पैदल चढ़ के आएगा, वो ऑटो से आएगा. तो आने के बाद उसको 5 मिनट शांति से बैठे रहने देना है. उसके बाद बीपी रिकॉर्ड करना है. पहला पॉइंट, राइट. दूसरा पॉइंट, जब भी कभी आप बीपी रिकॉर्ड करते हैं तो बीपी आप स्टैंडिंग पोस्चर में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, बीपी आप सिटिंग पोस्चर में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, बीपी आप लाइंग डाउन पोस्चर में भी रिकॉर्ड कर सकते हो. बट व्हाट इज द बेस्ट वे? तो बेस्ट वे इज द लाइंग डाउन पोस्चर. जब पेशेंट लेटा हो तो सबसे अच्छा एक्यूरेट ब्लड प्रेशर आएगा. क्यों? क्योंकि उस समय हार्ट का लेवल, ब्रेकियल आर्टरी का लेवल और इंस्ट्रूमेंट का लेवल, तीनों लेवल एक ही पोजीशन पे होंगे. इसलिए लाइंग डाउन पोस्चर बेस्ट है एक्यूरेट बीपी लेने के लिए. सिटिंग पोस्चर में भी ले सकते हो, लाइंग डाउन में भी ले सकते हो, लेकिन दैट वैल्यू विल नॉट बी एक्यूरेट. फाइन. तो पहला पॉइंट कि पेशेंट को हर 5 मिनट शांति से बैठाना है. उसके बाद जनरली आपकी कोशिश होनी चाहिए कि लाइंग डाउन पोस्चर में ब्लड प्रेशर ले, राइट. तीसरा पॉइंट कि ब्लड प्रेशर राइट आर्म में लेना है या लेफ्ट आर्म में लेना है. तो ब्लड प्रेशर जो है वो लेफ्ट आर्म में लेना है. किस में लेना है? लेफ्ट आर्म में. व्हाई यू विल टेक इन द लेफ्ट आर्म? लेफ्ट आर्म में इसलिए लेना है क्योंकि लेफ्ट आर्म में क्या होता है, हार्ट जो है आपका लेफ्ट साइड में, हार्ट किस साइड में? लेफ्ट साइड में. तो हार्ट क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट आर्म की जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू आएगी दैट विल बी मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू राइट आर्म. ठीक है. तो पहला पॉइंट कि शांति से आराम से 5 मिनट बाद लेना है. दूसरा पॉइंट कि जब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट का लेवल, हार्ट का लेवल एक ही लेवल पे हो तो लाइंग डाउन पोस्चर बेस्ट है. तीसरा पॉइंट कि राइट में लेना है या लेफ्ट में लेना है. जनरली कोशिश लेफ्ट में लेनी चाहिए क्योंकि लेफ्ट की वैल्यू एक्यूरेट आती है. ठीक है. फाइन. समझ आया. नाउ हाउ टू टेक द ब्लड प्रेशर. तो पहला पॉइंट लिखना था दैट वाज द एम
दूसरा पॉइंट लिखना था दैट वाज द रिक्वायरमेंट, तीसरा पॉइंट लिखना था प्रिंसिपल, चौथा पॉइंट स्फिग्मोमैनोमीटर, इंस्ट्रूमेंट को डिस्क्राइब कर देंगे किसके क्या पार्ट्स हैं, किसने खोजा था, और साथ में व्हाइट वाले पेज पे डायग्राम बना देंगे। फाइन। हाउ टू रिकॉर्ड द ब्लड प्रेशर, हाउ टू रिकॉर्ड द ब्लड प्रेशर, इसमें क्या लिखना है हाउ टू रिकॉर्ड द ब्लड प्रेशर में, कि सबसे पहले तीन मेथड है, पहला ऑस्कल्टेटरी, दूसरा पैल्पेटरी और तीसरा ऑसिलेटरी। तो पहला मेथड है ऑस्कल्टेटरी मेथड। तो ऑस्कल्टेटरी मेथड सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी ड्रेस उसने पहना है, मतलब स्वेटर वगैरह, वो सारा ऊपर कर देना है। दिस पॉइंट दिस इज नोन एज क्यूबाइटल फोसा, दिस इज नोन एज क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा से 2 इंच ऊपर, क्यूबाइटल फोसा से 2 इंच ऊपर आपको कफ बांधना है। कफ बांधते पे क्या याद रखना है आपको, ये याद रखना है कि ये जो पाइप्स हैं, ये जो पाइप्स हैं, दिस पाइप शुड बी ऑन द मीडियल साइड। ये जो पाइप्स हैं वो किस तरफ होने चाहिए, मीडियल साइड से, ये लैटरली नहीं होना चाहिए, ये पाइप्स मीडियल साइड से होने चाहिए, ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। और जो क्यूबाइटल फोसा है वहां से 2 अंगुल ऊंचा हो, और जो ये पाइप्स हैं वो मीडियल साइड में हो, ठीक है। उसके बाद आप इसको टाई कर देंगे। टाई करने के बाद आप क्या करेंगे कि ये इसमें एक स्क्रू लगा हुआ है, ये स्क्रू से आप खोल सकते हैं और इसको बंद कर सकते हैं। तो आप ये स्क्रू बंद करेंगे, ये जब कफ टाई हो जाएगा उसके बाद आप प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो जब प्रेशर क्रिएट करेंगे तो जहाँ डिजिटल, अगर ये मरकरी वाला होगा तो इसमें मरकरी ऊपर चढ़ेगी, और अगर ये मॉनिटर प्लेन होगा तो इस घड़ी की सुई ऊपर बढ़ेगी। कितना बढ़ाना है, अप्रोक्सीमेटली 150-160 तक ऊपर बढ़ाना है। फाइन, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो उससे होगा क्या, क्या हुआ क्या इससे, जब आपने प्रेशर क्रिएट किया तो प्रेशर क्रिएट करने की वजह से जो ब्रेकियल आर्टरी हाथ में थी वो ब्रेकियल आर्टरी अक्लूड हो गई, ब्रेकियल आर्टरी में खून बहना बंद हो गया, ब्रेकियल आर्टरी अक्लूड हो गई। तो जिसकी वजह से, तो उसके बाद क्या है, जब ब्रेकियल आर्टरी अक्लूड हो गई तब आप क्या करने वाले हैं, आप स्टेथोस्कोप लेने वाले हैं। स्टेथोस्कोप का जो चेस्ट पीस है वो आप ब्रेकियल आर्टरी पे रखेंगे। तो ब्रेकियल आर्टरी नीचे जो है बाइसेप्स मसल्स के टेंडन जा रहे हैं, उसी के साथ ब्रेकियल आर्टरी है। तो वहां पे जब आप इसको रखेंगे, किसको, चेस्ट पीस को, किसके, स्टेथोस्कोप को, तो वो कहाँ रखना है, वो पोजीशन कहाँ है, जो क्यूबाइटल फोसा है, क्यूबाइटल फोसा के थोड़ा मीडियल साइड में, लैटरली नहीं, थोड़ा मीडियल साइड में। तो यहाँ पे आप चेस्ट पीस रखेंगे। तो चेस्ट पीस रख के जो आप सुनेंगे, तो जब आप सुनेंगे तो पहले कुछ सुनाई नहीं देगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे पहली बार एक क्रैक कॉफ साउंड सुनाई देगी, टिक टिक जैसी। वो क्रैक कॉफ साउंड कहाँ पे सुनाई देती है, उसके बाद वो साउंड धीरे 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 कंटिन्यूस रहेगी, और कुछ समय के बाद वो साउंड खत्म हो जाएगी। तो जहाँ पे सबसे पहले साउंड सुनाई दी थी दैट वाज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जहाँ पे साउंड खत्म हो गई दैट वाज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्योंकि हमने सुन के ब्लड प्रेशर को पता किया, तो दैट इज नोन एज ऑस्कल्टेटरी मेथड। ऑस्कल्टेशन का मतलब आप स्टेथ की सहायता से कुछ भी सुन रहे हैं। तो इसमें आप क्या कर रहे थे, स्टेथ की सहायता से आपने ऑस्कल्टेट, कानों में लगा के सुना, इसलिए इसको ऑस्कल्टेटरी मेथड कहेंगे। तो आपने क्या किया, आपने जो है ये कफ को बांधा, कहाँ बांधा, क्यूबाइटल फोसा से 4 अंगुल ऊपर। हमेशा याद रखना है ये पाइप जो है वो मीडियल साइड में होने चाहिए। उसके बाद आपने प्रेशर क्रिएट किया और नोज को बंद किया और आपने प्रेशर डाला। तो जो ये मॉनिटर है, मॉनिटर या मरकरी है, वो 160-170 तक चढ़ जाए। उसके बाद आपने स्टेथोस्कोप लगाया, स्टेथोस्कोप लगा के चेस्ट पीस को आपने रखा ब्रेकियल आर्टरी पे। ब्रेकियल आर्टरी जो होती है वो नीचे कहाँ पे है, बाइसेप्स के टेंडन आ रहे हैं, तो वो किस तरफ मिलेगा एग्जैक्टली, वो मिलेगा मीडियल साइड में। कहाँ मिलेगा, लैटरल साइड में नहीं रखना है स्टेथोस्कोप, कहाँ रखना है, मीडियल साइड में। तो यहाँ पे स्टेप रखना है, फिर आपने धीरे धीरे प्रेशर रिलीज करना है। तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे पहली बार एक आवाज सुनाई देगी, उसे क्रैक ऑफ साउंड कहते हैं। फिर वो आवाज कंटिन्यूअस रहेगी और कुछ देर के बाद वो साउंड बंद हो जाएगी। तो जहाँ पे पहली बार साउंड सुनाई दी दैट इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जहाँ पे लास्ट टाइम सुनाई दी दैट वाज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो दिस इज बाय द ऑस्कल्टेटरी मेथड। एंड नाउ जो व्हाट वी हैव डन टुडे बाय द पैल्पेटरी मेथड। तो पैल्पेटरी मेथड से ब्लड प्रेशर कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो जैसे सबसे पहले कि पल्स लेने आना चाहिए। तो पल्स सबसे पहले रेडियल आर्टरी इजीली हाथ में कहीं भी आसानी से पकड़ सकते हैं। डॉर्सैलिस पीडिस पैर में है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो रेडियल आर्टरी है वो आसानी से इजीली अप्रोचेबल है। तो जनरली तो रेडियल आर्टरी का एग्जामिन कैसे करेंगे, रेडियल आर्टरी तो यहाँ पे अंगूठा है, अंगूठे के साइड जब आप पीछे की ओर जाओगे तो यहाँ पे रेडियल बोन रखी हुई है। तो रेडियल बोन में यहाँ पे अल्नर ट्यूबरोसिटी है, क्या है, अल्नर ट्यूबरोसिटी। तो अगर आप अंगूठे के साइड पीछे की ओर जाओगे तो आपको एक गड्ढा मिलेगा, यू विल फाइंड ए डिप्रेशन। तो उस डिप्रेशन पे आपको 3 फिंगर रखनी है, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर। तो आपने 3 फिंगर रखी और पहली फिंगर और तीसरी फिंगर को दबाया,
पहली को और तीसरी को दबाया और फिर आपने बीच में उठा के मिडिल फिंगर रख दी, तो मिडिल फिंगर के पास क्या होगा, आपको पैल्पेशन फील होने लगेगा। तो दिस इज वाई कि हाउ कि आपको आर्टरी का पल्सेशन कैसे फील करना है। तो क्यों फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अल्नर ट्यूबरोसिटी है, अल्नर ट्यूबरोसिटी के ऊपर रेडियल आर्टरी गई है, आपको इंडेक्स फिंगर और आपको रिंग फिंगर इस पे प्रेशर क्रिएट करना है और बीच में जब आप मिडिल फिंगर रखोगे तो आपको रेडियल आर्टरी का पोजीशन फील होगा। ठीक है, तो आज हम रेडियल आर्टरी का एग्जामिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं क्या, पैल्पेटरी मेथड से बीपी कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले कफ बांधना है, कफ बांध के क्या करना है, कफ बांध के सबसे पहले आपको अपना रेडियल आर्टरी का पल्सेशन फील करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरे हाथ से आपको प्रेशर क्रिएट करना है। जब प्रेशर क्रिएट करेंगे तो जो मॉनिटर है, मॉनिटर में सुई आगे की ओर भागेगी, या मरकरी है तो मरकरी ऊपर की ओर चढ़ेगी। कितना चढ़ाना है, जब तक ये पल्सेशन फील होना बंद ना हो जाए। तो पल्सेशन फील होना कितने पे बंद हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली 120, 130, 140 पे बंद हो जाएगा। उसके बाद 10-20 यूनिट और बढ़ा देना है। तो अगर 130 पे बंद हुआ तो 150, 160 तक बढ़ा देना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे स्क्रू ढीला करना है और प्रेशर नीचे नहीं छोड़ना है। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, फिर से आपको रेडियल आर्टरी में पल्सेशन सुनाई देने लगेगा और वो पल्सेशन कंटिन्यूअस रहेगा। तो जब जिस पॉइंट पे रेडियल आर्टरी में पल्सेशन सुनाई दिया, जिस पॉइंट पे रेडियल आर्टरी में पल्सेशन सुनाई दिया, दैट पॉइंट विल बी द वैल्यू ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो क्या सर हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हम पैल्पेटरी मेथड से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हम केवल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ही रिकॉर्ड कर सकते हैं पैल्पेटरी मेथड से, राइट। कैसे रिकॉर्ड करना है कि सबसे पहले आपको पल्स लेनी है, पल्स लेने के बाद आपने कफ बांधना है, उसमें प्रेशर क्रिएट करना है और उतना बढ़ाना है जब तक कि पल्सेशन फील होना बंद ना हो जाए। जैसे ही वो बंद होगा 10-20 यूनिट और बढ़ा देना है। उसके बाद स्क्रू ढीला करना है और स्क्रू प्रेशर को रिलीज करते जाना है। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि पहली बार जो है आपको पल्स जो है फील होनी शुरू हो जाएगी। जिस पॉइंट पे आपको पल्स फील होनी शुरू हो जाएगी, दैट पॉइंट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इस मेथड से आप डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये मेथड उतना एक्यूरेट नहीं है जितना कि ऑस्कल्टेटरी मेथड है। फिर क्यों यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास टैप ना हो तब यूज कर सकते हैं, सिंपली मेथड इंस्ट्रूमेंट और स्फिग्नोमैनोमीटर। दूसरा क्रॉस चेक करने के लिए, आप हेल्थ केयर वर्कर हो, आपका बीपी कोई नाप रहा है, आपने वो तो ऑस्कल्टेटरी मेथड से नाप रहा है, आपने यहाँ पे पल्स रख ली, आपने पल्स एग्जामिन कर रहे हो और वो बोल रहे हैं कि ऊपर वाला 140 है, आपको भी मालूम पड़ेगा कि 135 है, 140 है या 120 है, 110 है, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो और जब स्टेथोस्कोप ना हो तब नाप सकते हैं। तो पहला मेथड ऑस्कल्टेटरी, दूसरा मेथड पैल्पेटरी, तीसरा मेथड है ऑसिलेटरी। ऑसिलेशन क्या होता है, जो ये मरकरी है, जब इसमें मरकरी ऊपर की ओर चढ़ेगी तो डांसिंग ऑफ मरकरी, दैट इज नोन एज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब क्या है, फिजिक्स में पढ़ा है ना, ऐसे चलता है। तो जो डांसिंग ऑफ मरकरी दैट इज नोन एज ऑसिलेशन। तो जैसा कि हम ऑस्कल्टेशन में पढ़ते हैं, अगर किसी का 120 है और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक 80 है, तो जब हमने ऑस्कल्टेशन में सुना, अगर हमारे पास टैप नहीं है तब भी क्या होगा, ऑसिलेशन, इसमें जो मरकरी है वो मरकरी ऐसे हिलने लगेगी और उसका हिलना डांस जो है वो कंटिन्यूअस रहेगा 80 तक, मतलब जो भी इसका ब्लड प्रेशर है। तो 120 पे कंटिन्यूअस होगा पहली बार डांस, और वो डांस जो है धीरे 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 ऐसे हिलता हुआ कहाँ तक जाएगा, 80 तक। तो वो ऑसिलेशन है मरकरी का, डांस ऑफ मरकरी, उसको ऑसिलेटरी मेथड कहते हैं। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसकी वैल्यू उतनी अच्छी एक्यूरेट नहीं आती है जितनी अच्छी ऑस्कल्टेटरी की आती है और पैल्पेटरी की आती है। तो दे आर द थ्री मेथड टू रिकॉर्ड द ब्लड प्रेशर। तो पहला पॉइंट जो आपको लिखना था दैट वाज द एम, दूसरा पॉइंट जो लिखना था दैट वाज रिक्वायरमेंट, तीसरा पॉइंट प्रिंसिपल, चौथा पॉइंट स्फिग्नोमैनोमीटर को डिस्क्राइब करना है, पांचवा पॉइंट हाउ टू रिकॉर्ड द ब्लड प्रेशर, छठा पॉइंट कि आपके रिजल्ट्स क्या हैं। रिजल्ट्स में आपको सिक्का लिखना है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑस्कल्टेटरी मेथड से भी, पैल्पेटरी मेथड से भी, ऑसिलेटरी मेथड से भी, राइट हैंड का भी और लेफ्ट हैंड का भी। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना है नॉर्मल वैल्यू, तो ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 120/80 mm ऑफ Hg। फिर लास्ट पॉइंट लिखना है कि इंडिकेशन क्या देंगे, 40 साल के बाद सभी लोगों को अपना बीपी चेक कराना चाहिए, हार्ट के केस में स्पेशली, डायबिटीज के केस में स्पेशली, और 40 साल के बाद नॉर्मल चेकअप में ब्लड प्रेशर चेक करना आना ही चाहिए, कराना ही लोगों को चाहिए। उसके बाद प्रिकॉशंस क्या याद रखना है, प्रिकॉशन ये याद रखना है कि पेशेंट थका हुआ ना हो, आपको कोशिश करनी चाहिए आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, हार्ट है और जो आर्म है वो एक ही लेवल पे होना चाहिए, और जो कपड़े वगैरह मतलब स्वेटर वगैरह वो खोल के ही आपको कफ टाई करना है, और जो पाइप्स हैं दैट पाइप शुड बी ऑन द मीडियल साइड। तो
तो कॉपी में कैसे लिखना है, सबसे पहले एम, दूसरा हेडिंग प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट, तीसरा हेडिंग प्रिंसिपल, चौथा हेडिंग स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर को डिस्क्राइब करना है, इससे कितने पार्ट्स हैं, साथ में व्हाइट पेज पे एक डायग्राम बनाना है। उसके बाद हाउ टू रिकॉर्ड द ब्लड प्रेशर, देयर आर द 3 मेथड टू रिकॉर्ड द ब्लड प्रेशर। नंबर 1 ऑस्कल्टेटरी, नंबर 2 पैल्पेटरी, नंबर 3 ऑसिलेटरी। ऑस्कल्टेटरी मेथड को एक्सप्लेन करना है कि सबसे पहले क्या है कि पहले आप कफ टाई करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे, स्टेथोस्कोप लगाएंगे, कहाँ पे स्टेथोस्कोप लगाना है वो सारे पॉइंट्स लिखेंगे। फिर आप पैल्पेटरी मेथड को एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप ऑसिलेटरी मेथड को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे रिजल्ट। तो ऑस्कल्टेटरी मेथड का राइट हैंड में कितना है, लेफ्ट हैंड में कितना है, पैल्पेटरी मेथड का राइट हैंड में कितना है, लेफ्ट हैंड में कितना है, ऑसिलेटरी का भी राइट में और लेफ्ट में कितना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 120/80 mm of Hg। फिर आप लिखेंगे इंडिकेशन एज ए जनरल चेकअप आफ्टर 40 years of age। बीपी के केस में, हार्ट के केस में, हाइपरटेंशन के केस में इंडिकेशन ब्लड प्रेशर नापा जाता है। उसके बाद लिखेंगे प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशंस में क्या रखना है कि इंस्ट्रूमेंट और हार्ट का लेवल एक लेवल पे होना चाहिए, मोस्टली लेफ्ट हैंड में बिल्कुल लेना चाहिए, और पेशेंट कोशिश करनी चाहिए कि लाइंग डाउन पोस्चर में लें, लेकिन आप सिटिंग में भी ले सकते हैं और उसमें भी ले सकते हैं। तो दीज आर द पॉइंट, इन्हीं पॉइंट्स में कॉपी में लिख के लेके आना है स्फिग्मोमेनोमीटर या हाउ टू रिकॉर्ड द ब्लड प्रेशर। समझ आ गया? Yes, sir.